آغاز میں آپ کو بتائیں کہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے اپنی ٹیمیں پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ انگلینڈ مینز اور ویمنز ٹیم نے اکتوبر میں پاکستان کا دورہ کرنا تھا۔ انگلش کرکٹ بورڈ نے دونوں ٹیمیں پاکستان بھیجنے سے باقاعدہ معذرت کر لی ہے۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے موقف اپنایا کہ سیکیورٹی خدشات پر ٹیم پاکستان نہیں بھیج سکتے۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ انگلینڈ کی مینز ٹیم اور پاکستان کے درمیان 13 اور 14 اکتوبر کو 2 T20 شیڈول تھے۔ انگلش کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق مردوں کے ساتھ خواتین کرکٹ کا دورہ پاکستان بھی ختم ہو گیا۔ ہمارے کھلاڑیوں اور معاون عملے کی ذہنی اور جسمانی فلاح ہماری اولین ترجیح ہے۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، سپورٹس اینالسٹ سید محمد اویس نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ۔ محمد اویس، پہلے نیوزی لینڈ پھر انگلینڈ کا نہ آنا کوئی سازش لگ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، اب تو یہ کلیئر آپ کو پتا کہ جب نیوزی لینڈ کی ٹیم یہاں پاکستان میں جس وقت ان لوگوں نے ایک موقف اپنایا کہ سیکیورٹی خدشات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ ٹور ادھورا چھوڑ کے جانا پڑا، تو بڑا ایک اچھا وسیم خان کی طرف سے اور اپنا رمیز راجہ کی طرف سے اسٹانس تھا کہ، اور obviously تھا، دیکھیں کہ آپ کو شیئر کرنی چاہیے تھی کہ آپ کو تھریٹ تھا، کیونکہ آپ ڈائریکٹلی بیسکلی سوورنٹی جو ان کی چیلنج کر رہے کنٹری کی سیکیورٹیز کی، تو آپ کا کام بنتا تھا جو بھی آپ کا جو ایشو تھا، جو بھی آپ کو انٹیلیجنس رپورٹ شیئر کی گئی اس کو آپ شیئر کرتے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ، پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ، تاکہ اس چیز کو کلیئر کیا جاتا۔ لیکن اب وہی چیز کہ آپ ایگزامپل دیکھیں، آپ کے سامنے کی بات ہے کہ 3 دن سے 4 دن سے آپ پاکستان میں موجود تھے، آپ پریکٹس بھی کر رہے ہو اسی سیکیورٹی کے انڈر، اور اسی سیکیورٹی کے اوپر آپ آبجیکشن بھی اٹھا رہے ہو، اور اسی سیکیورٹی کے ساتھ آپ ایئرپورٹ بھی جا رہے ہو، تو کہاں پر وہ چیز پھر گئی؟ پھر وہی آپ کو پتہ یہ پری پلانڈ ساری ایک چیز تھی، کیونکہ ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں، آپ کو یاد ہو کہ جب بھی IPL ہوتی ہے تو بیسکلی ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ جب IPL ہو تو پوری دنیا کی جو کرکٹ ہے اس کو ہولڈ کیا جائے، کیونکہ سارے اس کی ویورشپ بھی بڑھتی ہے، پھر آپ کو پتہ اوبیسلی جب لوگ دیکھتے ہیں اس کی ریٹنگز بھی بڑھتی ہیں، تو ان کا ایک طریقہ کار یہ پہلے بھی ان لوگوں نے اپنانے کی بہت دفعہ کوشش کی، اور اب بھی آپ دیکھیں کہ انگلینڈ کا بہت بڑا سٹیک ہے انڈیا کے اندر، کیونکہ ان کے پلیئر سب سے زیادہ IPL کھیلتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پتہ ہے کہ انگلینڈ اور انڈیا کی سیریز بھی ابھی آ رہی ہے، تو obviously آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ پیچھے کس کی یہ سازش تھی۔ پاکستان کو ہر کوشش ان کی ہے کہ ان کو ڈینٹ پہنچایا، چاہے وہ سفارتی محاذ پہ ہو چاہے اسپورٹس مین محاذ پہ ہو، تو وہ اس چیز کے اندر وہ جتنا کوشش کر سکتے ہیں کہ آئسولیٹ کریں پاکستان کو، کوشش کریں گے، لیکن اسٹل پاکستان کی جو عوام ہے خاص کر کے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ ہے یا پاکستان کی جتنی بھی میں کہوں گا سیکیورٹی ادارے ہیں وہ متحرک ہیں پاکستان کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو میں کہوں گا ٹف سچویشن جو پاکستان کے اوپر چل رہی ہے، انشاءاللہ تعالی یہ بہت جلد ختم بھی ہوگی، اور آل دا بیسٹ پاکستان ٹیم کے لیے کہوں گا کہ ورلڈ کپ اسپیشلی ایک ایسا ایونٹ ہے جہاں پر ہم پاکستانی ٹیم ایک منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، جیسے ہم نے 2009 میں دیا تھا ورلڈ کپ T20 جیت کے، ہمیں بھی انشاءاللہ تعالی اچھا پرفارم کر کے ورلڈ T20 جیتنا چاہیے، تاکہ ایک منہ توڑ جواب دنیا کو جائے کہ پاکستان ایک سیف ملک ہے، بے شک اس کو آئسولیٹ بھی کریں لیکن اسٹل ہم لوگ اچھا پرفارم کر کے دکھائیں گے آپ لوگوں کو۔ ٹھیک ہے محمد اویس، یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے پاکستان نے اتنا کچھ کیا ہے، پاکستان ٹاپ رینکنگ ٹیم بھی رہی ہے، کیا پاکستان کے بغیر انٹرنیشنل کرکٹ بھی مکمل نہیں ہو سکتی؟ تو اس پر گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں یہ تو obvious سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ایک ون آف دی اولڈسٹ کرکٹ بورڈز ہے، اولڈ کرکٹ ٹیم ہے، اور پاکستان کے بغیر آپ جو ICC کا پینل ہے، پول جو ہوتا ہے بیسکلی آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے، اور آپ نے دیکھا ہوگا جو ایکس کرکٹرز بھی ہیں، یہاں تک کہ کین ولیمسن جو نیوزی لینڈ کے خود ایک اپنا کیپٹن بھی ہے، انہوں نے بھی اس چیز پہ کہا کہ بڑا افسوس ہوا کہ بیچ میں جو یہ ٹور نیوزی لینڈ کی ٹیم چھوڑ کے آئی ہے۔ دیکھیں سب سے بڑا جو سوالیہ نشان ہے اس وقت جو نیوزی لینڈ کے اوپر، اب مارٹن گپٹل آپ کو پتا ہو، کولن مونرو ہو، جو نیوزی لینڈ کے اس وقت اپنا کرنٹ پلیئرز ہیں، وہ PSL پورا یہاں کھیل کے پاکستان میں گئے ہیں، پھر بھی ان کو آبجیکشن کس چیز کا تھا وہ خدا کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اور بھی جو ہماری گورنمنٹ آف پاکستان ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت عمران خان کی قیادت میں اسپیشلی میں کہوں گا کیونکہ ایک پازیٹیو امیج ورلڈ کو گیا ہے، اور ان کی جتنی کوشش ہو سکتی ہے obviously گورنمنٹ آف پاکستان کر بھی رہی ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ بھی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ شاید کنفرم نہیں ہے لیکن خبریں یہ بھی ہیں کہ کسی کرکٹ بورڈ سے بھی بات ان کی چل رہی ہے کہ کچھ جو گیپ ہے جو پاکستان بیسکلی جو تیاری ہے ورلڈ کپ کے لیے اس کو پورا کیا جائے، کس ٹیم کو یہاں پر اب بلائیں گے یہ لوگ، تو چیلنجز ضرور ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے، لیکن پھر وہی بات کہ ورلڈ دس ناٹ دی اینڈ، آپ کو کیری آن کرنا ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے، کوشش ہوگی کہ کوئی بھی جو نیشن اویلیبل ہے، کیونکہ سری لنکا بنگلہ دیش آپ کو پتہ ہے اس وقت وہ کوالیفائنگ راؤنڈز بھی کھیل رہے ہیں، لیکن کوشش ہماری زیادہ ہوگی پاکستان کرکٹ بورڈ کی obviously کہ جو بھی کرکٹ اس وقت فرٹرنیٹی اویلیبل ہے ان کو پاکستان میں لا کر ہوم سیریز کھلائی جائے، اور بہت ہی اچھا ایک سٹانس تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہ
कहना कि हम जो भी अब होम सीरीज होगी हम पाकिस्तान में ही खेलेंगे, हम न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेलेंगे, और इस चीज पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डटना पड़ेगा। आपको दिखानी पड़ेंगी आंखें दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को कि देखें इंडिया में भी अटैक्स हुए, आपको याद होगा न्यूजीलैंड में भी जो अटैक्स हुए थे, फिर भी क्रिकेट वहां पर जारी रही थी। तो पाकिस्तान एक सेफ मुल्क है, अल्लाह का शुक्र है, हमारी सिक्योरिटी दारों पे सबको भरोसा है, पूरी दुनिया को। हमें स्ट्रॉन्ग स्टांस ये अपनाना है और अपना के रखेंगे कि क्रिकेट खेलनी है तो पाकिस्तान में खेलो, नहीं तो अल्लाह हाफिज़ नासिर। अवैस ये बताएगा कि क्या पीएसएल के लिए मुश्किलात होंगी इन फ्यूचर में, क्योंकि फॉरेनर प्लेयर्स ने आना होगा पाकिस्तान, तो उनके आने में मुश्किलात हो सकती हैं या सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखें, ऑब्वियसली जब एक डेंट तो आपको पड़ता है, जब एक इंटरनेशनल टीम आपके पास टूर कर रही हो, डेंट मैंने पता है कि पड़ता है जरूर। वो भी चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजेस के अंदर भी ज़हन में होगी कि हमारे जो प्लेयर्स यहाँ पर खेलते हैं आके, तो उनका क्या इस वक्त बनेगा। तो काबिल इस वक्त मैं कहूँगा बोलना इस चीज को, लेकिन क्योंकि लीग क्रिकेट एक टोटली डिफरेंट होती है इंटरनेशनल क्रिकेट से, जरूर इंटरनेशनल प्लेयर्स ही होते हैं, लेकिन स्टिल आपको पता है कि जहां पर आपको फाइनेंशियली ज्यादा बेनिफिट होता है तो क्रिकेटर शायद वो दूसरी चीज भी भूल जाते हैं, और ये माजी में भी हुआ है। लेकिन हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, किस तरीके से खास करके फ्रेंचाइजेस कायल करती हैं अपने प्लेयर्स को। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को आपने देखा है इस वक्त, वो बड़ी पॉजिटिव है और वो कहती भी है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है तो हम जितने इस वक्त फॉरेन प्लेयर्स जो अवेलेबल हैं और उनको हम पिंडी में इकट्ठा करके यहाँ पर फ्रेंडली मैचेस खेल सकते हैं जो पाकिस्तान के लिए भी फायदेमंद हो वर्ल्ड कप के लिए। तो फ्रेंचाइजेस के ऊपर बड़ा एक मैं कहूँगा कि टफ टाइम है, और फ्रेंचाइजेस की लॉबिंग कैसी होती है अपने प्लेयर्स के साथ, ये देखने वाली बात है। ठीक है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट सईद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर मायूसी हुई, चेयरमैन पीसीबी रमेश राजा का इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर इजहार अफसोस। कहा कि इंग्लैंड इस वक्त सीरीज से दस्तबरदार हुआ जब हमें ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने इस ट्विटर बयान में इस अज़्म का इजहार भी किया कि हम अपनी क्रिकेट जारी रखेंगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर मायूसी हुई, चेयरमैन पीसीबी रमेश राजा का इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर इजहार अफसोस, और उन्होंने कहा कि इंग्लैंड उस वक्त सीरीज से दस्तबरदार हुए जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने अपने ट्विटर बयान में इस अज़्म का भी इजहार किया कि हम अपनी क्रिकेट जारी रखेंगे। आम खबर से आपको आगाह करें कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर मायूसी हुई, ऐसा कहना था चेयरमैन पीसीबी रमेश राजा की जानिब से। भारत अफगानिस्तान के मामले के बाद सारा मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने न्यूजीलैंड की टीम वापसी पर कहा कि कोई बात नहीं, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को बेहतरीन सिक्योरिटी दी, घबराने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान आगे जाएगा। न्यूजीलैंड में इतनी फौज नहीं जितनी हमने उनको सिक्योरिटी दी। फर्स्ट टाइम हुआ पाकिस्तान में कि कैबिनेट ने न्यूजीलैंड की टीम को कैबिनेट ने आर्मी की सिक्योरिटी प्रोवाइड की। इतनी न्यूजीलैंड में फोर्सेस नहीं होंगी जितनी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की टीम के लिए सिक्योरिटी मुहैया की। उन्होंने जाने क्या फैसला किया, तो अब कौम को अफसोस जरूर है, दुख जरूर है। एक दिन आएगा ये सारी टीमें खेलने आएंगी, और जो प्रोपेगेंडा कर रहा है खास तौर पर इंडिया ने पिछले एक महीने से, क्योंकि जो अफगानिस्तान में उसकी सुबकी हुई है और जो उसकी मायूसी हुई है उसको, और उसका सारा मास्टर प्लान नाकाम हुआ है, उसका सारा मलबा पाकिस्तान पे डालना चाहता है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को करारा जवाब दे दिया। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की किसी दूसरे वेन्यू पर खेलने की ऑफर मुस्तरद कर दी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को मुतबादिल जगह पर मैच खेलने की ऑफर की थी। पाकिस्तान में दौरा अधूरा छोड़कर भागने वालों को करारा जवाब मिल गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के दोबारा मुतबादिल जगह पर खेलने की ऑफर मुस्तरद कर दी। कीवी बोर्ड ने कहा कि न्यूजीलैंड दोबारा पाकिस्तान में खेलना चाहता है, रीशेड्यूल सीरीज के लिए मुनासिब विंडो तलाश कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड की न्यूट्रल मकाम पर खेलने की पेशकश मुस्तरद कर दी है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के माबैन 18 साल बाद पाकिस्तान में मैच होने जा रहा था। आखिरी लम्हे पर न्यूजीलैंड ने दौरा मनसूख कर दिया। पीसीबी का कहना है कि मेहमान टीम की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात कर रखे थे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी कराई थी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान ने दौरा पाकिस्तान के अचानक खत्म होने को अफसोसनाक और शर्मनाक करार दे दिया। बोले, उम्मीद है दौरा खत्म होने के देर पास रात नहीं होंगे। पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत सपोर्ट किया जाता है, दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान पे भी इंटरनेशनल क्रिकेट की जरूरत है। एक इंटरव्यू में केन विलियमसन का कहना था कि मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि पाकिस्तान में सीरीज खेली जा रही है, लेकिन इस तरह दौरा खत्म होना बहुत ही अफसोसनाक और शर्म की बात है। हमारी टीम ग्राउंड जाने के लिए तैयार थी और खिलाड़ी शिद्दत से सीरीज के
मुंतजिर थे। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें पाकिस्तान में न्यूजीलैंड के दौरा मंसूख किए जाने के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल अचानक हुआ। दुबई में क्रिकेट लीग के लिए मौजूद हूँ, सूरत हाल के बारे में जल्द जानने की कोशिश करूंगा। उनका कहना था कि खिलाड़ियों की हिफाजत की बड़ी अहमियत होती है और जब हुकूमत की तरफ से पैगामात मिले तो सूरत हाल खिलाड़ियों से ऊपर चली जाती है। रावलपिंडी क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम को फिर आबाद करने की तैयारियां मुकम्मल। क्रिकेट बोर्ड ने रावलपिंडी में दौरा न्यूजीलैंड मंसूख होने के बाद नेशनल T20 का मेगा इवेंट मुनक्किद कराने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। न्यूजीलैंड टीम के सीरीज खेलने से इनकार के बाद पीसीबी ने बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमों को बुलाने की कोशिश की थी ताकि वर्ल्ड कप की तैयारियों का मौका मिल सके। ताहम लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से ये टूर्स मुमकिन नहीं हो सके। इस सूरत हाल में पीसीबी ने क्रिकेटर्स के लिए नई मसरूफियात तलाश कर ली हैं। 26 टीमों के खिलाड़ी अब 23 सितंबर से रावलपिंडी में खेले जाने वाले कौमी T20 कप में एक्शन में नजर आएंगे। वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी भी कौमी इवेंट में शरीक होंगे। पहला मरला रावलपिंडी में होगा, बाद अज़ां फाइनल समेत मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। साबिक वेस्ट इंडियन खिलाड़ी क्रिस गेल के पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को दूर करने के लिए पाकिस्तान आने के ऐलान पर ऑस्ट्रेलियाई सहाफी डेनिस ने भी पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार किया है। डेनिस फ्रेडमैन ने ट्विटर पर क्रिस गेल के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि अगर ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत मुझे अभी इजाजत दे तो मैं भी आपके साथ पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हूं। न्यूजीलैंड टीम की पाकिस्तान से क्रिकेट खेले बगैर वापसी पर वेस्ट इंडियन क्रिकेटर क्रिस गेल पाकिस्तान की हिमायत में बोल पड़े थे और पाकिस्तान आने का ऐलान भी किया था। अपनी जारहाना बैटिंग की वजह से दुनिया भर में मशहूर क्रिस गेल ने कहा कि वो कल पाकिस्तान जा रहे हैं। इनके साथ कौन आ रहा है? तालिबान हुकूमत ने भारत के झूठे प्रोपेगेंडे का करारा जवाब दे दिया। तालिबान ने अफगानिस्तान में भारतीय क्रिकेट लीग IPL के बकिया मैचेस की नशरियात दिखाने पर पाबंदी लगा दी है। भारत में कोरोना वायरस के केसेस में तशवीशनाक हद तक होने वाले इजाफे के बाद वहां जारी मकामी टूर्नामेंट IPL को मुलतवी कर दिया गया था। इवेंट में शामिल गैर मुल्की खिलाड़ियों के भारत आने से इनकार के बाद भारतीय हुकाम ने इसे मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिया था। अब इस इवेंट के बकिया मैचेस का दोबारा आगाज हो चुका है, जिसके मैचेस भारत के अलावा दीगर ममालिक में भी नशर किए जाते हैं। तालिबान ने इवेंट के मैचेस अफगानिस्तान में दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी है। यहां पे वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद सियासी खबरों में आपको बताएंगे वफाकी वजीर रेलवे आजम स्वाति का कहना है कि मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान ने भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बातें की। इनको कितने नोटिस मिले जो मुझे भेजा जा रहा है? वफाकी वजीर रेलवे आजम स्वाति ने एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तनकीद का निशाना बनाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिकंदर सुल्तान आइन और कानून बालादस्त है या आपकी जात? आप बड़े मियाँ के हाथ की घड़ी और छोटे मियाँ की छड़ी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतालिक बहुत सी बातें सिकायराज हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सीसा पिलाई दीवार होकर मुकाबला करेंगे, रोक सको अगर रोक सकते हो। सिकंदर सुल्तान राजा साहब, हारता वो है जो हार मानता है। कानून और आईन जबरदस्त है कि तुम्हारी जात क्यों इतने अजीम इदारे को तबाह करने पे आप तुले हुए हैं? किसके कहने पे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कौन पूछना चाहती है? बैरून मुल्क पाकिस्तानी आपसे पूछना चाहते हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन से कोई झगड़ा नहीं है, राजा सुल्तान से हमारा झगड़ा है। साहब, राजा साहब, तुम नहीं आइन और कानून को तोड़ सकते या रोक सकते। पार्लिमान बाख्तियार इसी आइन के मुताबिक जिसने 213 आर्टिकल में तुम्हारा तकर्रर किया है। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान का कहना है कि हुकूमत EVM और आई वोटिंग में आगे बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दौर में की गई। जो मशीन से डरकर भाग रहे हैं उनको कौम को जवाब देना पड़ेगा। मशावरत एक शख्स से नहीं इदारे से होती है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए मनमानी नहीं कर सकती। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी किसी से ढकी छिपी नहीं, लेकिन हुकूमत को इससे सरोकार नहीं। ब्रॉडशीट में हुकूमत के 8 से 10 अरब निकल गए। इन्हें ऐसा ही चेयरमैन नैब चाहिए जिसे हुकूमती करप्शन नजर न आए। मशावरत जो होती है वो एक शख्स से नहीं होती, इदारे से होती है। ऑर्डिनेंस के जरिए बदनीयती पर मबनी आप कानून में तब्दीली नहीं कर सकते।
अपने मनमानी के लोगों को सुनते हो, वो चेयरमैन नैब पाकिस्तान को कबूल नहीं है। जो मुल्क की महंगाई है वो किसी से छुपी नहीं, आप सब जानते हैं। जो बेरोजगारी है, जो मुल्क में गुर्बत बढ़ती जा रही है, इसी अरसे में ब्रॉड शीट में हुकूमत के कोई 8-10 अरब निकल गए। ये परफॉर्मेंस है इस चेयरमैन नैब की, इसमें हुकूमत की करप्शन नजर न आए। दूसरी जानिब मुआवन खसूसी शहबाज गिल ने शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि दरबारी पन से वज़ीर आज़म बनने वाले अपने हलके से हारे हैं। प्रोपेगेंडा करने वालों को अवाम 2018 में मुस्तरद कर चुके, बैरूनी ताकतों के पांव पड़ने वाले नाअहल मुल्की बदनामी का बाइस बने हैं। अपोजिशन शीशे के घर में बैठकर वजारत दाखिला पर पत्थर न मारे। वजीर दाखिला शेख रशीद अपोजिशन पर बरस पड़े, बोले अपोजिशन इलेक्शन की तैयारी पर निकल आई है, ये जुमा खेल रहे हैं। शीशे के घर में बैठ के शेख रशीद या वजारत दाखिला पर पत्थर ना मराएं, बराए मेहरबानी। हर इलेक्शन के बाद ये कहा जाता है धांधली हुई है। इवन आप देखें ट्रंप जुलूस लेके जा रहा है कि धांधली हुई है। अगर अमेरिका जैसे मुल्क में ये बात होती है तो ये जो हमारे अंडर 19 की टीम है वो तो मुखालफत करेगी मशीन की, ईवीएम मशीन्स की मुखालफत करेगी, लेकिन कैबिनेट का, प्राइम मिनिस्टर का ये एक फैसला है कि इसको असेंबली से पास करवा के और इसकी मंजूरी लेने के बाद अगला इलेक्शन जो है, और ये खुद इलेक्शन मुहिम पे इस मशीन के तहत होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमती रवैये ने सियासी तसादुम को नुक्ता अरूज पर पहुंचा दिया है। पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी का तसादुम सिर्फ दिखावे की सियासत है। कौम तीनों जमातों से बेजार हो चुकी है। सिराजुल हक ने इंतखाबी इस्लाहात को नागुज़ीर करार दे दिया। कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात पर पॉइंट स्कोरिंग मुल्क के लिए मजीद तबाहकुन होगी। हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और मीडिया पर चढ़ाई ना करे, सियासतदान संजीदगी और दानिशमंदी का मुजाहरा करे। उन्होंने कहा कि अवाम फरसूदा निजाम और इसके रखवालों को मुस्तरद करे, सवामतीन की सरबलंदी के लिए जमात इस्लामी का दस्तेबाजू बने। उन्होंने मजीद कहा कि जमात इस्लामी अहलियत से भरपूर अफराद पर मुश्तमिल जमात है, मुल्क को हकीकी मानों में इस्लाम का किला और फलाही रियासत बनाएंगे। कौमी असम्बली इजलास के दौरान लीगी रहनुमा एहसन इकबाल और वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा के दरमियान गर्मा गर्मी। एहसन इकबाल ने नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंसूबे पर काम न होने का शिकवा किया तो वफाकी वजीर बोली स्पोर्ट्स पॉलिसी 2005 में आई जिस पर अमल नहीं किया गया। एक मंसूबा नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का तामीर किया जा रहा था, उस मंसूबे को खुद नैब ने हुकूमत को खत लिख के कहा कि फौरी तौर पे मुकम्मल किया जाए। क्या वजह है कि 3 साल से इस मंसूबे को खंडर बना दिया गया है। ये प्रोजेक्ट, एक तो आपको पता है कि नैब का रेफरेंस है, सीसीआई का फैसला था कि ये दोबारा सूबों के पास जाए। क्या ये भी हकीकत है कि उसके लिए तो फंड नहीं दिए गए, लेकिन आईपीसी की वजारत ने अपनी मिनिस्टर के हल्के में बदीन के अंदर 2 मंसूबे मंजूर करके उसके लिए फंड जारी कर दिए हैं। मेरी समझ नहीं आता कि बार बार आप ये उठाते हैं, कभी स्टैंडिंग कमेटी में, कभी कहां, और अभी तो प्रोजेक्ट सिर्फ अनाउंस हुआ है। अगर 2 उनके लिए कॉम्प्लेक्स या स्पोर्ट फैसिलिटी बनती है तो आपको एतराज नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल से इत्तेहादियों ने मुलाकात की है। सूबाई वज़रा तारिक मुक्सी, ज़िया लंगू, सलीम खोसा, रुकन असम्बली मसूद लूनी, गौहराम बुगटी भी मौजूद थे। सेनेटर सरफराज बुगटी, दिनेश कुमार, रुकन कौमी असम्बली इसरार तरीन भी मौजूद थे। मुलाकात में मौजूदा सूबाई सियासी सूरत हाल पर मशावरत की गई। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बुनियादी शरह सूद में 0.25% का इजाफा किया गया है। स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद में 0.25% बढ़ा दी, जिसके बाद आइंदा 2 माह के लिए बुनियादी शरह सूद 7.25% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की जेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में शरह सूद में इजाफे का फैसला किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक माशी बहाली की रफ्तार तवक्को से ज्यादा बढ़ गई है। जून से साल ब साल महंगाई कम हुई है। ताम दरामदाद में इजाफा और महंगाई के साथ बढ़ता हुआ तलब का दबाव माली साल में आगे चलकर महंगाई के अदाद शुमार में जाहिर होना शुरू हो सकता है। स्टेट बैंक के मुताबिक इस बात के आसार बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान में
ज्यादा जोर देने की जरूरत है। इमरान साहब मईशत को ले डूबे, महंगाई की छुरी से अवाम को हलाल कर दिया और चाहते हैं कि कोई ना बोले। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के तनाज़ुर के जरिए असल मसाइल से तवज्जो हटाने नहीं देंगे। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने एक बार फिर वज़ीर आज़म को हदफ तनकीद बना डाला। तर्जुमान नून लीग का कहना है कि इमरान साहब तारीखी नाकामियों, करप्शन और अवामी मायूसी को इदारों और मीडिया पर हमलों से छिपाना चाहते हैं। अवाम के आटे, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की बात ना हो, इसलिए किराए के तर्जुमान रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस से कौम का पैसा जाया करते हैं। पीआईटी को पीटीआई का दफ्तर बना लिया गया। महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। शहरी कहते हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद हर चीज महंगी हो गई है, जाए तो जाए कहां। पेट्रोल बम से सिर्फ अवाम नहीं, अरकान असम्बली भी परेशान है। पेशावर में रुकने सूबा असम्बली सरदार रंजीत सिंह एहतजाजन रक्षम असम्बली पहुंचे। उनका कहना था कि पेट्रोल के पैसे नहीं है, गाड़ी एमपीए हॉस्टल में खड़ी करती है। पेट्रोल की कीमत ज्यादा होने से रक्शे का किराया भी बढ़ गया। एमपीए हॉस्टल से असम्बली तक रक्शे वाले को 200 रुपए किराया दिया। एफबीआर ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स की शरह के रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल पर सेल्स टैक्स शरह में 5.36% की कमी कर दी गई है। पेट्रोल पर 10.54%, हाई स्पीड डीजल पर 11.64%, मट्टी के तेल पर 6.70, जबकि लाइट डीजल पर 0.2% सेल्स टैक्स लागू होगा। दीगर खबरों में आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर की आज वर्चुअल इजलास में एक साथ शिरकत मुतवक्के है। वज़ीर आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा के क्लाइमेट चेंज सेशन में शरीक होंगे। मौसमियाती तब्दीली के इजलास में अमरीकी सदर की शिरकत भी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक इजलास में 45 सरबराहान मुमलिकत शरीक होंगे। क्लाइमेट चेंज पर G8 का ये इजलास UN सेक्रेटरी जनरल ने बुलाया। वज़ीर आज़म इमरान खान 10 बिलियन ट्री, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, मुतबादिल तवानाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल और वेस्ट मैनेजमेंट पर बात करेंगे। शदीद गर्मी और हब्स के बाद बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश ने जल थल कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों से दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी नजर आई। नदी नालों में पानी की रवानी में इजाफा हो गया। दिन भर हब्स और शदीद गर्मी के बाद शाम में बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और जनूब मशरकी सिंध में चंद मकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। बारिशों के बाद ठंडी हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। सारा दिन शदीद गर्मी और हब्स ने शहरियों को बेहाल कर रखा था। ताम बारिश से मौसम खुशगवार हो गया और शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सबसे ज्यादा बारिश सियालकोट सिटी में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसी तरह लाहौर में गुलबर्ग के इलाके में 8 मिलीमीटर, मरी 3, गुजरावाला 2, खैबर पख्तूनख्वा बालाकोट में 33, काकुल 16, चराट 9, कश्मीर में गड़ी दुबट्टा 26, मुजफ्फराबाद सिटी में 5, बलूचिस्तान के जिला लसबेला में 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और जनूब मशरकी सिंध में चंद मकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। ताम मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहेगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे तो कई फीडर्स भी ट्रिप कर गए। बारिश के बायस इस्लामाबाद के 17, अटक के 15 फीडर्स ट्रिप कर गए, जिससे कई इलाकों में बिजली बंद हो गई। रावलपिंडी सिटी और कैट के 13 फीडर्स भी बारिश के बायस जवाब दे गए। बारिश रुकने के बाद मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। शहरियों को बिजली की तारों, खंभों और ट्रांसफार्मर से दूर रहने की हिदायत जारी की गई है। शहबाज शरीफ अकाउंट्स केस में निजी बैंक के नायब सदर आसिफ सूरी 14 रोजा रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिए गए। बैंकिंग कोर्ट लाहौर में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स बनाने से मुतालिक केस में गिरफ्तार किए गए निजी बैंक के नायब सदर आसिफ सूरी को 14 रोजा रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया।